If you're watching this video, it is not a coincidence that you are here because I have put this intention. I'm sending out this video with this intention that it will reach to the right people at the right time, and your angels, spirit guides, the universe, and the higher power brought you here at this particular moment on this day today to watch this video. If you know me, I don't channel information, I don't record these messages, I don't provide guidance just for everyone. I do it for a particular group of people. My videos, my information, my work will resonate to a particular collective. And if you're watching me right now, it's most likely that you are a part of the Sunflower Tribe. It is a community, it is a collective of the people who believe in love, who believe in serving, who believe in healing, who believe in creating. All of you people who are watching me right now are here because they have incarnated on this planet Earth as light workers, as star seeds, as energy workers, as spiritualists, as awakeners, as guides, as channelers, intuitives, as creators. You are the protector of the new earth. You are the leaders of the new earth. We create ideas into physical life. We channel information and we give birth to ideas. And if you're listening to me right now, you are not an ordinary soul. You're not an ordinary person. And today, I'll be channeling information for you for this month, for this March month. We'll be channeling information, any kind of clues, any kind of insights, any information that you need to ascend in your mission, to ascend as a soul for your soul's growth, in your spirituality, in your overall life. What all messages that you need to hear right now, what you are allowed to know for your future. Hello everyone, my name is Khushi Jhauri and welcome to my channel. And before starting, I just want to wish all of you a very happy Holi. May this festival brings a lot of joy in your life, a lot of protection, a lot of healing, a lot of love and creation and just overall fun. एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको उनकी डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर दूँगी. You can also watch my other videos. Please do like, share and subscribe. Also share this video if you find it very useful with other people who may resonate with this message as well, who are going through the same journey as you are. And मैं चाहती हूँ कि मेरे जो messages है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जो हमारे collective का part है, ताकि उनको भी हीलिंग मिल सके, उनको भी गाइडेंस मिल सके आगे फ्यूचर में क्या करना है या फिर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे उन्हें क्या एक्शंस लेने हैं, क्या गलतियां वो कर रहे हैं, क्या सही वो कर रहे हैं, क्या सीक्रेट मैसेजेस उन्हें जानने की ज़रूरत है जो यूनिवर्स उनको बताना चाह रही है. And just one more thing, don't feel alone. You are not alone. There are a lot of people who are going to the same things in this particular time. This time is not very easy for us, but do not focus on the surrounding. Do not focus on the environment that you are in right now. All the negativity, all the false information which is being spread by the media, उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. Just start focusing on your internal progress. How are we going to break down this video? So first I'm going to check कि आपकी current energy क्या है. Then we will go to the overall month कि आपका overall month कैसे होने वाला है. And then we will go to particular fields of your life or areas of your life, that is your love life, then your career, then your health, which is your emotions, emotional health, physical health and your mental health, then your spirituality and any kind of extra messages or guidance that you need to hear
or need to know? Yeah, let's just start. Let's just get into it. Take a deep breath with me. Open your energy. Just be calm and let me connect with your energies. Completely relax yourself, your face, facial muscles, your shoulders, any kind of tension that you have in your body, उसको please release करिए. Let's start. Angel spirits and my higher self, please tell me, जो मुझे अभी देख रहे हैं, the viewers who are watching me right now, उनकी current energy क्या है? What are they going through right now? What is happening? Anything that you want to tell. Okay. One more card, please. Thank you so much. Hermit card तो always आता ही है. Good. Okay. I see कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन योर करियर. आप अपने करियर में अपनी स्टेबिलिटी के लिए मटेरियल लाइफ में आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं. And you were so exhausted in the past. Previously आप इतना एग्जॉस्ट हो गए थे इस चीज़ को ट्राई करते करते, इतना परेशान हो गए थे कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, क्या होगा. सो यू वर जस्ट सो एग्जॉस्टेड ट्राइंग दीज थिंग्स बिकॉज आप, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहे हो पास्ट में जो आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं करता हो, जो आपको फोर्स करा गया हो किसी और की वजह से, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपनी फैमिली की वजह से, या फिर वर्क वाइज भी आपके ऊपर किसी तरीके का बर्डन डाला जा रहा हो. वो चीज से आप निकलते हुए दिख रहे हो कि अब मुझसे ये बर्डन और सहन नहीं होता, मैं और घुट के नहीं रह सकती हूँ, मैं और ज़्यादा इस ट्रैप में नहीं रह सकती, मैं और ज़्यादा इस मैट्रिक्स में नहीं रह सकती. मुझे पता है कि मेरे अराउंड क्या चीज़ें चल रही है, मुझे पता है कि लोग मुझे क्या फीड करना चाहते हैं, मुझे पता है कि ये ट्रैप है, ये माया जिसमें हम अभी बैठे हैं, दिस इज़ ऑल एन इल्यूजन. मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है. आपको सच्चाई दिख रही है, आपको दिख रहा है कि आपको, दिस इज हर्मिट. सो हर्मिट इज द पर्सन हु नोज, हु इज इंटेलिजेंट, हु इज वाइज, जिसको क्लियरली दिख रहा है, जिसने इंटरनल वर्क करा है, जिसने शैडो वर्क करा है, जो खुद के साथ बैठा है वो पर्सन. With all the things that were going in your past, in your future, आपकी spiritual awakening जिस भी वजह से हुई है, उसके वजह से आपको फोर्स करा गया है एक कुकून में जाने के लिए, एक आइसोलेटेड स्पेस में जाने के लिए, ताकि आप खुद को जान सको, ताकि आप ये देख सको कि कैसे मैं डिफरेंट हूँ दूसरे लोगों से, क्या पोटेंशियल्स, क्या स्किल्स, क्या टैलेंट्स है मेरे अंदर. उन टैलेंट्स को मुझे अपने सरफेस लेवल पे लेकर आना है, उसको मुझे चैनल करना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ताकि मैं एक हेल्पिंग हैंड बन सकूँ इस यूनिवर्स के लिए, ताकि ये यूनिवर्स, ये कंफर्मेशन, हायर पावर्स जो है, जो मेरे स्पिरिट गाइड्स है, भगवान जो है, वो मुझे यूज कर सके एज अ टूल फॉर सर्विंग this collective, for serving this world, to raise the vibrations of this planet. That's why you're feeling so exhausted, क्योंकि आप currently सबकी feelings महसूस कर सकते हो. आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये जो चीज़ें जिसमें मैं अभी हूँ, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर नोइंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, क्या ये मुझे सर्व भी करेगा. सो अगर आप इन सब चीज़ों में अभी फंसे हुए हो, आप सोच रहे हो, जैसे हमारे पास में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो इट्स लाइक कि आई एम वेटिंग फॉर माई फ्यूचर, आई एम वेटिंग फॉर द ब्लेसिंग्स टू अराइव. मैंने जो भी मेहनत करी, मैंने जो अपना शैडो वर्क करा, मैंने जो इतना हार्ड वर्क डाला है अपने आप को री इन्वेंट करने में,
उसका फ्यूचर क्या है, उसकी ब्लेसिंग्स क्या है, कब मेरे मैनिफेस्टेशंस मेरे पास में आएंगे. सो दिस इज वॉट यू आर वेटिंग फॉर राइट नाउ. पेज ऑफ पेंटिकल्स से आपको ऐसा भी लग रहा हो कि वाई इज एवरीथिंग मूविंग सो स्लो, इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है सब कुछ, हर चीज बहुत स्लो चल रही है अभी. बट हमारे पास में 10 का कार्ड है एंड 9 का कार्ड है. एंड इसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग टू अराइव. सो आपको ये बोला जा रहा है कि तुम्हारी बारी आने वाली है. जस्ट होल्ड ऑन, यू आर अबाउट टू रीच ओवर देयर बिकॉज दिस पर्सन इज अबाउट टू रीच टू हिज डेस्टिनेशन. वो उस जगह तक, उस लैंड तक, उस कॉलोनी में पहुंचने वाला है. वो अपनी रेजिडेंस में पहुंचने वाला है. वो वहां पहुंचने वाला है जहां पर वो जाना चाहता था. जिस जर्नी को आपने स्टार्ट किया था या आपको फोर्स करा गया था चालू करने के लिए थ्रू योर गाइड्स, आपको ये बोला जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत नॉलेज गेन करा है. एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट कीप डूइंग इट फॉर सम मोर टाइम, क्योंकि आप वहां तक पहुंचने वाले हो. बिकॉज जस्ट आफ्टर दिस कार्ड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ न्यू बिगिनिंग, इज न्यू आइडियाज. कुछ नई चीज स्टार्ट होने वाली है. इन योर कनेक्शंस एज वेल, यू आर मीटिंग द राइट पीपल एज वेल. सो लेट्स सी आपका ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा. आपका ओवरऑल मंथ ऑफ मार्च कैसा रहेगा. लेट्स सी ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा. I knew this was going to come. Okay. So first message आपके लिए ये है ओवरऑल मंथ के लिए, that you will have a lot of conflicts in your mind. आपका जो beliefs है, limiting beliefs and your empowering beliefs, आप जब अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो यूजिंग मैनिफेस्टेशन, और इफ यू आर ट्राइंग टू रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड, आप जो भी प्रैक्टिसेस अभी यूज कर रहे हो, वहाँ पर आपके लिमिटिंग बिलीव्स वापस पॉपअप होने की कोशिश करेंगे. वो सरफेस लेवल पे आएंगे और उस समय वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं. वो आपको अपने रेगुलर पैटर्न से या फिर एक स्मूथ मोमेंटम से वो आपको एक ब्लॉकेज बन सकते हैं. और आप अपनी स्मूथ तरीके से जैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे उसमें वो थोड़े से बम्प्स ला सकते हैं. तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. बिकॉज अगर आप अब तक ऐसे फील कर रहे थे कि लिमिटिंग बिलीफ्स क्यों आ रहे हैं, ये नेगेटिव क्यों फील हो रहा है, मुझे एंजाइटी क्यों फील हो रही है, बार बार ये नेगेटिव इमोशंस क्यों आ रहे हैं, तो और आप उनको और सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं उससे और किसी और चीज़ पे फोकस करने लगते हैं, लाइक वॉचिंग अ मूवी, या फिर किसी से बात कर लिया, या फिर आपने कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए आपने यूज़ करने लगे, तो आप उस नेगेटिव इमोशन को और सप्रेस कर देते हैं, आप उस पर काम नहीं करते हो. तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस महीने ये चीज़ मत करना. अगर आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, आपको बार बार लिमिटिंग बिलीव्स बार बार पॉपअप हो रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सुनो. और आपके जो शैडो सेल्फ है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उसको सुनो, उसको सप्रेस मत करो और उससे फाइट मत करो, उसको रेजिस्ट मत करो, उसके साथ बैठो और काम करो. क्योंकि अगर आपके दिमाग में क्लटर रहेगा, आपके दिमाग में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, आपके ब्रेन के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, तो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी वैसा ही होएगा. आपके आसपास के लोग आपसे और ज़्यादा लड़ने लगेंगे. और अगर आप उन नेगेटिव बिलीफ के साथ काम नहीं करेंगे तो वही सेम
चीज़ें और ज़्यादा क्रिएट होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इनसिक्योरिटी होती है अपने लुक्स को लेकर और आप उस थॉट को उस पे काम नहीं कर रहे हो। आप उसको रीप्रोग्राम नहीं कर रहे हो, उसको अनलर्न करके उसको रीलर्न नहीं कर रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप उसको सप्रेस कर दोगे एंड आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसे ट्रिगर्स आपको मिलेंगे जिसकी वजह से वो वापस से बाहर आ जाएगा, वो इनसिक्योरिटी वापस पॉप अप होने लग जाएगी। सो वो इतना ज़्यादा लाउड होने लग जाएगा एक समय के बाद में कि आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे उसको। आप बहुत परेशान हो जाओगे। सो आपके लिए बेस्ट ये ही है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग योर ओन एनिमी, जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है आपके साथ में। ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में डोंट यूज योर इमोशंस, डोंट लेट योर इमोशंस ओवर पावर यू। आपके इमोशंस को ओवर पावर मत होने दो, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करो एंड अपने माइंड पर थोड़ा सा अपना लॉजिक को थोड़ा यूज करने की जरूरत है आपको। इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि मेरे इमोशंस क्या बोल रहे हैं, अपनी इमोशंस की सुनने के बजाय अपनी ब्रेन की सुनो। एंड जब आप ब्रेन को यूज करेंगे, जब आपको अगर आपको पता है कि अपने आप को रीवायर कैसे करते हैं, हमारे माइंड को, हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे रीप्रोग्राम करा जाता है, कैसे हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम खुद की रियलिटी खुद बना सकते हैं, अगर आपको वो नहीं पता है कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को रिवायर करते हैं, रिप्रोग्राम करते हैं, यू कैन बुक a consultation session with me. I will help you in that. You can contact me on my Instagram, through my Instagram or on my email. But if you know that, just try and start reprogramming yourself using your mind. Don't let your emotions come in the way. ओके एंड उसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आएगा। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे, आपको एक्चुअली दिखेगा कि आपके मैनिफेस्टेशंस, आपका रीप्रोग्रामिंग, आपका जो काम है, आपका जो इनर वर्क है, उसको जितना ज़्यादा आप करोगे इंटरनली, जितना आप हील करोगे अपने आप को, और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है, आप जब उसको ब्लॉक कर दोगे कि आई डोंट वांट कि मेरी लाइफ में बाहर क्या हो रहा है, कोई पर्सन मुझे कुछ बोल के जा रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट मेरे घर में हो रहा है, या किसी ने मुझे और क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने मुझे और बुरा भला बोल दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या बोल के जा रहा है, क्योंकि वो मेरा सच है ही नहीं। मेरा सच वही है जो मैं अपने आप को बता रही हूँ। जब आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे, जब आप क्वीन किंग एनर्जी में सोचने लग जाओगे दैट आई नो हु आई एम, आई डोंट गिव अ शिट व्हाट अदर्स आर टेलिंग मी, तब उस समय आपकी मैनिफेस्टेशंस आने लगेगी, तब आपकी ब्लेसिंग्स आने लगेगी। अगर अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते थे कि मेरी लाइफ में ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, कुछ काम नहीं कर रहा है, मुझे सब एक साथ में ठीक करना है। आपको ये बोला जा रहा है एक साथ में कुछ भी ठीक मत करो। एक साथ में अगर आप करोगे तो और ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा और फिर कुछ भी ठीक नहीं होएगा। तो पहले एक फील्ड को पकड़ो, पहले एक एरिया को पकड़ो, पहले एक पर्टिकुलर गोल को पकड़ो और उस पे काम करना स्टार्ट करो। अपने इमोशंस को वहाँ पर, अपनी एनर्जी को उधर इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लव लाइफ भी ठीक नहीं है, आपका करियर भी ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं हो रही, आपको बहुत सारे फियर्स भी है, सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन ऑल ऑफ देम एट वंस, आप पहले एक टारगेट को पकड़ो एंड उस पे अपना 100% फोकस लगाकर पहले उस पे काम करो। जिधर आपको सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि अगर मेरे करियर में मुझे अच्छा काम करने से सब मुझे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा, तो पहले वो चीज़ करो। अगर आपको लगता है कि अगर मेरी लव लाइफ या मेरी मैरिज लाइफ बहुत ख़राब चल रही है और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, तो पहले उसको ठीक करो। जो भी चीज़ आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है इमोशनली, उस पे आपको पहले काम करने की ज़रूरत है। इस महीने आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी, किसी की शादी, कुछ नया कुछ नया आ रहा है, लाइक
कुछ भी हो सकता है, नई कार हो गया या आप कुछ नया कोई नया घर खरीद रहे हैं आपके लाइफ में, एक नया फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है, किसी चाइल्ड का बर्थ हो रहा है या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, आपको न्यूज़ आ सकती है कि आपकी फैमिली में किसी ने कंसीव कर लिया है, सो उसकी गुड न्यूज़ भी आ सकती है। कहीं से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपकी फैमिली से आपको कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। इस समय मुझे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होएगा इस मंथ, and you will feel much more powerful and much more stable this year, अगर this month सॉरी, अगर आप अभी तक बहुत इमोशनल पर्सन थे, आप बहुत भावनाओं में बह जाते थे एंड आपको लगता था कि ये पर्सन अगर मुझे कभी हर्ट कर देगा, ये मुझे कुछ बोल देगा तो मैं जल्दी से रो दूंगी, या फिर मैं अपना बैलेंस जो मेरा सेंटर है वो मेरा डिसबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। सो वो नहीं हो रहा है क्योंकि आप अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत बैलेंस करके चलोगे इस मंथ। राइट, बिकॉज वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो किसी ने भी किसी भी तरीके का पेन, किसी भी तरीके का सफरिंग, किसी भी तरीके का हार्ट ब्रेक आपको इस मंथ हिला नहीं पाएगा, आपकी अलाइनमेंट से आपको हिला नहीं पाएगा, बिकॉज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू दिस मंथ। इफ यू डोंट प्रे, कीप प्रेइंग टू योर एंजल्स। आप आर्क एंजल माइकल जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड आर्क एंजल गैब्रियल वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस रीडिंग के अंदर, तो आप उनको प्रे कर सकते हैं। इवन शिव जी भी बहुत मुझे लग रहे हैं। एनी काइंड ऑफ डीटी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी बीइंग जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, उनको आप प्रे करेंगे, बिकॉज सब एक ही होते हैं, सब एक ही है, तो आपको 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिलीफ ये भी था कि मनी के लिए मैं इस डीटी को प्रे करती हूँ, लव लाइफ के लिए इस डीटी को करती हूँ एंड हेल्थ के लिए इनको करती हूँ, सो आप 10 जगह जाने की बजाय एक डीटी को प्रे करो। उनको आप अपने लाइक यू कैन गो टू मल्टीपल, बट आप सबकॉन्शियसली भी ये बिलीव करो कि सारी डीटी, सारे एंजल, सारे भगवान सब एक ही है, सब एक ही यूनिवर्सल क्रिएटर का पार्ट है, एक ही कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट है। आप अगर आर्कएंजल माइकल को कर रहे हैं तो वो शिव जी तक पहुंच रहा है, अगर आप राधा रानी को कर रहे हैं तो वो काली माँ तक पहुंच रहा है। सो सब एक ही है, सब एक ही, हर रिलीजन, सारे धर्म सब एक ही है। आप जिनको भी प्रे करोगे वो डिवाइन तक पहुंचेगा। सो डोंट फील कि मुझे 10 जगह जाने की जरूरत है। अगर आप एक को भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप मल्टीपल को भी कर रहे हैं तो भी वो एक ही एनर्जी तक पहुंच रहा है। यू हैव टू बी मोर काइंड टू योर सेल्फ दिस मंथ। अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे आपको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी, अगर मैंने अपने आप पर इतना प्रेशर नहीं डाला, अगर मैंने इस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा, इस डाइट को फॉलो नहीं करा, तो कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। उस एनर्जी में आप फियर की एनर्जी में रहते हैं, लैक की एनर्जी में रहते हैं, बट आपको बोला जा रहा है फुलफिलमेंट की एनर्जी में रहिए। Feel the energy and emotions of peace, relaxation, calmness. I am fulfilled, मेरे पास सब कुछ है। जब आपके पास में ऑलरेडी वो मैनिफेस्टेशन है, जब आपके पास में ऑलरेडी वो चीज़ है जिसको आप डिज़ायर कर रहे हैं, आपको कैसा फील होएगा? यू विल फील सैटिस्फाइड। आपको वो चीज़ की ज़रूरत होगी ही नहीं। आप उसको देखने, उसको चेस करने जाओगे नहीं, क्योंकि आपके पास में वो चीज़ ऑलरेडी है। So you have to start trusting in yourself, because you are winning this month, and any kind of offer that you are getting उसको छोड़ना मत। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आने मत देना कि मैं ये कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ें आएगी और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की ज़रूरत है। डोंट ओवर थिंक दिस मंथ, डोंट ओवर थिंक, जस्ट एक्ट, टेक एक्शन, बिकॉज हमारे पास में ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है।
आपको लगता है आपको करना है, बट आपको अभी ये फोकस करना है कि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है करना. सो अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, अ लॉट ऑफ विक्ट्री इज कमिंग दिस मंथ आपके लिए. ओके, लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ. Wow. Okay. Okay, I see कि love life में this is for the people who are currently in a relationship, और वो या तो past की बात है या फिर currently भी आप किसी relationship में हो सकते हैं जिसमें आप fulfill feel नहीं कर रहे हो. ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी विद देयर सोलमेट्स. तो अगर आप सोलमेट के साथ में हैं ऑलरेडी और आपको पता है कंप्लीटली, क्योंकि आप यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको पता है कि आपके लिए कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन आपके लिए नहीं है. आई डोंट हैव टू टेल यू दैट. सॉरी अबाउट द डॉग. सो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन आपका है कि नहीं है, आपको पता है. एंड इफ दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, ये वाला मैसेज आपके लिए है. एंड फॉर द पीपल जो ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ में है, आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन योर लाइफ एंड आपको अभी कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं है लव लाइफ में. जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आप आगे का पार्ट देख सकते हैं. For the people who are currently single or going through a breakup or separation और या फिर conflicts, बहुत ज़्यादा conflicts आपके लाइफ में अगर अभी हो रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपने अपने पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करे थे उस पर्सन को ठीक करने के लिए, बिकॉज यू आर एन इम्पैथ. राइट, आप एक इम्पैथ हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके पास में इतनी नॉलेज है, इतना टैलेंट है, आपको इतने इंट्यूटिव डाउनलोड्स आते हैं एंड यू नो how to take care of yourself, how to improve, how to love. आपको वो चीज पता है. यू आर एन एंजल एंड आप एक ऐसे पर्सन को टेम करने की कोशिश कर रहे थे, आप एक ऐसे पर्सन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे जो हु वॉज अ बीस्ट, जो कभी ठीक नहीं हो सकता था, जिसमें आपने इतना अपनी एनर्जी पोर करी, इन्वेस्ट करी है कि वो ठीक नहीं हो सकता था वो पर्सन. आपने काफी हद तक उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करी है थ्रू योर एफर्ट्स, थ्रू योर हीलिंग, थ्रू योर नॉलेज. कि आई नो कि अगर आप ये एफर्मेशंस करोगे, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे या फिर आप ये वाला मेथड यूज करोगे, आप उनको स्पिरिचुअल वीडियोस भेजते थे और वो बिल्कुल उससे रेजोनेट नहीं करते थे, वो रिजेक्ट कर देते कि मुझे तो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं है, तुम जो भी कर रही हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो, तुम बस कर लो अपना काम, मुझे मत फंसाओ इस चीज़ों में. तो अगर वो इस तरीके के पर्सन थे, आप उनको किसी भी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे बिकॉज यू वर सो फियरफुल ऑफ दिस थॉट कि ये पर्सन मुझे कभी छोड़ के ना चला जाए, या फिर इसका कभी किसी और के साथ में अफेयर ना हो, या फिर ये पर्सन ऐसा ना निकले जो मुझे किसी और की जगह रिप्लेस कर दे. आपको रिप्लेसमेंट का डर था, आपको ये डर था कि ये पर्सन मुझे कमिट नहीं कर रहा है एंड ये हर किसी को जाकर कमिट कर रहा है, लाइक दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा है, दूसरे लोगों से बातें कर रहा है, उनको डीएम सेंड कर रहा है, उनको मैसेजेस सेंड कर रहा है. तो आपको इस चीज़ का ही डर था कि ये पर्सन मेरे साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा. एंड दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन को टेम करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है. दिस इज दैट पर्सन. ये वो पर्सन है लाइक अ बीस्ट. ही इज अ पर्सन जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं करती थी बिकॉज यू आर एन एंजल, यू आर एन अर्थ एंजल. आपके पास में इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर से, यू आर सो कॉन्फिडेंट. आप यहाँ पर इस पर्सन को ठीक करने नहीं आए हो क्योंकि आपको हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हील करना है. अगर आप अपनी सारी एनर्जी इस पर्सन के अंदर पोर कर दोगे तो आप खुद को हील नहीं कर पाओगे, आप ड्रेन हो जाओगे खुद.
and because of these things you will not be able to attract that partner in your life जो आपको फुलफिल करेगा। यहाँ पर आपकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो रही है, खत्म हो रही है। आप अपनी पावर में, जैसे कोई पर्सन अगर अपनी पावर में होता है, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपनी लाइफ़ में इतना फुलफ़िल, इतना खुश होता है कि उसे घबराहट नहीं होती, उसे एंग्ज़ायटी नहीं होती, उसे स्ट्रेस नहीं होता। क्योंकि जब सच्चा प्यार होता है किसी के साथ में, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पे शक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती है। आप काम फ़ील करते हो, आप न्यूट्रल हो जाते हो, क्योंकि आप सेफ फ़ील करते हो उस पर्सन के अराउंड। एंड दैट पर्सन, इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इनसिक्योरिटीज़, इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने आप को वो एनर्जीज़ देना, अपने आप में वो फुलफ़िल करना उस चीज़ को। आप खुद को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना जो आप एक दूसरे पर्सन के पोटेंशियल में ढूँढ रहे हो। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन ठीक हो जाए, या ये मुझे प्यार करने लग जाए, या ये मुझे मेरी वैल्यू देखने लग जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं इसको इतना प्यार दे रही हूँ, इतने इसमें एफर्ट्स पुट कर रही हूँ, इसको इतना अटेंशन दे रही हूँ, अपने प्लान्स कैंसल करके मैं इस पर्सन को जाकर मिल रही हूँ। मैंने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग या इतने इम्पोर्टेंट असाइनमेंट मुझे करना था, एग्ज़ाम मेरा आ रहा है और मैं वो सब चीज़ें छोड़कर, अपना करियर सैक्रिफाइस करके, अपना टाइम सैक्रिफाइस करके उस पर्सन के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ उसके अंदर, अपनी एनर्जी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ, या फिर अपना टाइम उसको इतने इतने सारे आवर्स में उसके लिए वेट कर रही हूँ, उसके मैसेज के लिए। हर थोड़ी देर में अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ, हर थोड़ी देर में अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही हूँ कि उसने किसको फ़ॉलो करा, उसने किसको लाइक किया, उसने मेरे मैसेज पे रिप्लाई करा कि नहीं करा। सो व्हाई आर यू स्पेंडिंग ऑल ऑफ दिस टाइम ऑन दिस शिट? अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में होते हो, एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हो, जो बहुत सेफ है, जहाँ पर आपको प्यार मिल रहा है, जितना प्यार दे रहे हो, उससे ज़्यादा प्यार आपको मिल रहा है। वो आपके लिए कनेक्शन लिखा हुआ है फ्यूचर के अंदर। बट अगर आप इस एनर्जी से नहीं बाहर निकलोगे, तो वो वाला एनर्जी वापस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। वो वाली एनर्जी जो आप वेट कर रहे हो, जो आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन वो बन जाए, जो मैं सोच रही हूँ, मेरा ड्रीम पर्सन ये पर्सन बन जाए। आप एक चूहे को शेर नहीं बना सकते हो। एक चूहा चूहा ही रहता है, एक शेर शेर ही रहता है। तो आप अगर ये इमेजिन कर रहे हो, ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन एक शेर बन जाए, ये मेरे पोटेंशियल के अंदर, मेरे ड्रीम पार्टनर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और मैं इसके साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकूँ और हमारी फेरी टेल लव स्टोरी बन जाए, तो ये वो पर्सन नहीं है। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फेरी टेल लव स्टोरी आगे वेट कर रही है। एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सो नर्चरिंग। वो आपको स्पॉइल करेगा वो पर्सन, लाइक लिटरली वॉट एवर यू नीड, यू डोंट हैव टू इवन आस्क, you don't even have to ask that person to bring you that thing, वो happiness, वो सब कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी वो चीज करेगा या करेगी। that person will make you feel seen, heard। आपकी बात, आपकी बोरिंग स्टोरीज भी वो पर्सन इतनी गौर से सुनेगा कि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छुपा हुआ है। दैट पर्सन विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा ये जो सॉफ्ट टॉय है, दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सॉफ्ट टॉय एज अ बेबी, बिकॉज दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो वो उस पर्सन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। और आप इस पर्सन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके मैसेजेस को रिप्लाई भी नहीं करता है। लाइक लिटरली why are you even doing this? Stop being so obsessed with a person who is not keeping you as the priority. ऑब्सेशन से बाहर निकलो, ऑब्सेशन से बाहर निकलो। यू आर बीइंग सो ऑब्सेस्ड और अपनी एनर्जी इतनी खत्म कर ली है इस पर्सन की वजह से, बिकॉज you have a lot of potential, but you are killing it. When you will start working on your insecurities, on working on yourself, on fulfilling your things, because उसके बाद आपकी लाइफ 360 चेंज हो जाएगी। एंड दिस हैज़ टू हैपन।
दिस हैज़ टू हैपन बिकॉज ये इज़ डिवाइनली गाइडेड। आपकी लाइफ में ये पर्सन इसलिए आएगा ताकि आप कुछ लेसन सीख सको, वो लेसन सीख लो, नहीं तो ये पर्सन आपको और फंसाएगा और ड्रेन करेगा और ज़्यादा परेशान करेगा। सो क्यों रहना इस एनर्जी में, बाहर निकलो। लिटरली यू विल फील लाइक कि आप किसी पिंजरे से बाहर निकल चुके हो। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। लेट्स मूव ऑन टू योर करियर। I think this video is going to be long क्योंकि मैं piles नहीं करती हूँ, and I just want to give my collective a very detailed reading about their life. So yeah, this is a general reading, but if you want to book your personal readings, if you resonate with these messages, you can also book your personal readings. I only take 10 to 15 readings a month. उससे ज़्यादा मैं readings नहीं लेती हूँ because I only work with divine people, spiritual people who are on a path, who are similar to me, जो मेरे soulmates हैं and they need guidance in their life, so मैं उनको guidance provide करती हूँ. I don't do it for everyone. Let's see about your career. Okay. Wow, good. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो करियर है वो इस तरीके से होगा कि पास्ट में आपको अपने करियर में बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ होगा। लाइक वो आप जिस तरीके के पर्सन हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक न्यूरो डाइवर्जेंट हो सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर तरीके से जैसे पूरी दुनिया रहती है, लाइक 9 to 5 जॉब करना, सर्वाइवल मोड में रहना और वो कांस्टेंट फाइट एंड फाइट मोड के अंदर जैसे रहते हैं ये पूरी दुनिया, आपको उस तरीके से नहीं रहना है। यू वांट टू लिव अ लाइफ, यू वांट टू वर्क एज इट इज अ फन फॉर यू। आपको इस तरीके से जीना है कि काम मेरे लिए एक फन होना चाहिए, इंजॉयमेंट का प्रोसेस होना चाहिए, मुझे इसमें पैशनेट फील करना है। एंड आई डोंट वांट टू फील दिस हार्ट ब्रेक इन माई करियर कि मुझे मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। लाइक मुझे ज़बरदस्ती ये चीज़ करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे मेरी मजबूरी है या फिर मुझे किसी प्रेशर में ये काम करना पड़ रहा है। लाइक यू हैव टू डू दिस थिंग क्योंकि सब कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो आपको उस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीनी, आपको उस तरीके का काम नहीं करना है। आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपको फुलफिलमेंट फील हो, जिसमें आपको अच्छा फील हो, लाइक ट्रू सैटिस्फैक्शन फील हो। एंड आपको आपकी लाइफ के अंदर करियर में भी आपका करियर कुछ इतना अच्छा नहीं रहा होगा, पास्ट में भी आपको फायर कर दिया होगा या आपकी जॉब चली गई होगी किसी भी रीज़न की वजह से। आपने अपने करियर में इतना जितना आपने एक्सपेक्ट किया था आपको उतना पैसा नहीं मिलता है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज यू आर मेंट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, यू आर मेंट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक डिवाइन इंटरवेंशन होने की ज़रूरत थी ताकि आप उस बोरिंग टास्क से, जिसको दुनिया ने आपको बताया कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, टीचर बनना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा है या फिर ये स्टेटस मिलता है या फिर ये पर्टिकुलर फेम मिलता है। तो आप अब कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आपको ट्रू सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो आपके दिल को, आपके हार्ट को सैटिस्फाई कर रहा है, आपके इमोशंस को सैटिस्फाई कर रहा है। बट करंटली यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड, यू आर फीलिंग कि अगर मैं ये चीज़ कर भी रही हूँ तो ये काम करेगा क्या, क्योंकि सब लोग तो कुछ और बोल रहे हैं और मैं अगर अपने मन का करने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको वहाँ पे सेल्फ डाउट फील हो रहा है। आप अभी भी उन्हीं लूप में अटके हुए हो कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे और प्रिपरेशन करनी है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और काम करना पड़ेगा।
और मैं बंधी हुई हूँ, मैं आप अपने आप को बार-बार ये चीज़ बताते हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं करने देंगे, लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, अगर मैंने अपना करियर चेंज कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो आप उन्हीं ट्रैप्स में फँसे हुए हो, आप वही चीज़ों को अपने दिमाग में बार-बार रिपीट कर रहे हो एंड उस चीज़ की वजह से आप उधर ही अटके हुए हो, जहाँ पर आप पहले थे और आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। आप चाहो तो आप इस जगह से बाहर निकल कर एक अपनी खुद की दुनिया, अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे आपको ट्रूली ऐसा फ़ील हो कि मुझे यहाँ पे जस्टिस मिला है, मुझे यहाँ पर ट्रू सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट यू आर सो अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल आर गोइंग टू से। लोग लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आपको उस चीज़ का बहुत डर है। आपको ये डर है कि एक अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, लाइक योर फादर और योर मदर, योर पार्टनर, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं या फिर कोई टीचर हो सकता है, कोई भी पर्सन जो आपको जिनका आपको सबसे ज़्यादा डर है अगर आपने कुछ और चीज़ स्टार्ट करी तो ये पर्सन मुझे वो चीज़ करने नहीं देगा। ये पर्सन मुझे रोक देगा ये चीज़ करने से, तो आपको उस चीज़ का डर है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप ईज़िली यहाँ से बाहर निकल सकते हो, अगर आप चाहो। डिटर्मिनेशन के साथ में अगर आप चाहो तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। बट यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ यू आर मेबी इफ यू आर अ टीचर एंड आपको अब लॉयर बनना है, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। आप एक टीचर हो और आपको एक लॉयर बनना है एंड यू वांट टू स्विच फील्ड्स, या आपको कुछ नया स्टार्ट करना है अपने ही फील्ड के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स होते हैं, उनके अलग अलग फील्ड्स होती है। तो मे बी फ्रॉम मे बी वेब डेवलपमेंट आप एआई में जाना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी स्विच करना चाहते हो अपने करियर के अंदर एंड यू आर सो अफ्रेड ऑफ दिस न्यू बिगिनिंग कि मैं अगर स्टार्ट करूँगी तो क्या होगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू मास्टर दैट स्किल, यू हैव टू गैदर अ लॉट ऑफ करेज। बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो आपके यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करवा रही है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जितना इस चीज़ को बड़ा समझ रहे हो ये उतना बड़ा नहीं है। आप इजीली यहाँ से बाहर निकल सकते हो क्योंकि आपके लिए वो पूरा पाथ बना हुआ है। आपको सिर्फ उस रोड के ऊपर चलना है, आपको सिर्फ वो हिम्मत जुटानी है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। एंड जैसे-जैसे आप चलते जाओगे आपकी लाइफ में और हेल्प आती जाएगी। आपको ऐसे लोग, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे मैसेजेस, ऐसे स्किल्स आपको मिलती जाएगी, ऐसी पावर्स आपको मिलती जाएगी, ऐसी नॉलेज आपको मिलती जाएगी जो आपको वहाँ पर पहुँचने में हेल्प करेगा। जैसे अगर आपको एक करियर स्टैब्लिश करना है, लाइक इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 9 टू 5 जॉब टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, सेल्फ डिपेंडेंट आप बनना चाहते हो, खुद का बॉस बनना चाहते हो, तो उसमें पहले आपको वो चीज़ को मास्टर तो करना ही पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी। बहुत करेज आपको लाना पड़ेगा तभी आप वो चीज़ में एंटर कर सकते हो। सो उसके लिए आपको अपने अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद के ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, सेल्फ डाउट से बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी सेल्फ वर्थ आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज द एम्परर एंड द एम्प्रेस। यू हैव टू स्टार्ट सीइंग एज दैट फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। उस हायर सेल्फ की तरह आपको अभी से सोचना पड़ेगा एंड उसके जैसे एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। एंड आई ऑल्सो सी देयर इज अ लॉट ऑफ एट इन दिस। जजमेंट का कार्ड भी है एंड जस्टिस का कार्ड भी है। सो एवरीथिंग इज गाइडेड बाय गॉड विथ शनिदेव। शनिदेव का आप में किसी की साढ़े साथी या फिर ढैया चल रही होगी किसी की, बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपका करियर अभी स्टक है। यू आर फीलिंग दैट स्टैग्नेंट एनर्जी, बट इट इज नॉट स्टैग्नेंट, इट इज स्टैग्नेंट बिकॉज यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट। शनिदेव ने आपको एक ग्रीन लाइट दिखा दी है। लाइक आपको अब तक फील होता था दैट यू आर ट्रैप, दैट शनिदेव आपको बहुत हार्म कर रहे हैं, वो आपको स्लो प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, तो वो आपको एक ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं कि जाओ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो, अगर तुम काम करने को तैयार, अगर तुम वो सारे लेसन सीखने को तैयार हो, अगर तुम अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें इतनी अबंडेंस प्रोवाइड करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कभी यहाँ पे पहुंच सकते थे। इतना अबंडेंस, इतना ज़्यादा
यस, टेम्परेंस है ना, डेविल, यू आर ट्रैप्ड। सो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लॉस देखा है आपने बहुत ज़्यादा। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से लिंक्ड है ये चीज़। बचपन में अगर आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हुई है फाइनेंशियली, आपके पेरेंट्स वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए आपको, वो चीज़ से आपको उभरना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को एक लाइफ दे सको जो आपने कभी ड्रीम करा था कि काश मुझे चीज़ मिल जाए। फ्यूचर में आपको वो चीज़ें फ्यूचर में जो चीज़ें आने वाली वो आपको अभी से ही सोचनी पड़ेगी। गॉड इज़ विद यू, गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू, एवरीथिंग इज़ डिवाइनली अलाइन्ड। आप जहाँ पर हो, यू आर एट द राइट प्लेस, everything is happening on the divine timing. You just have to go out of your self doubt and start creating a new life. मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। ये एक ऑप्शन खुला हुआ है आपके लिए। आई वॉन्ट टू गेट सम कार्ड्स फ्रॉम दिस मनी डेक। वन कार्ड प्लीज, कोई गाइडेंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव। आई थिंक आपका जो कर्मा था वो क्लियर हो रहा है, एंड यू आर फ्री टू गो। आपका कर्मा जो भी था, जैसे 3 साल मुझे दिख रहा है, 3 से 5 साल का अगर आपका कोई कर्मा था रिलेटेड टू योर करियर जिसमें आपको सर्व करना था, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। आप खुद ही अभी उन लूप में ट्रैप्ड हो। ओके, वन थिंग, एक एक एग्जाम्पल मुझे आ रहा है, जैसे कि आज ही मैंने किसी क्रिएटर को ये चीज़ बोलते हुए सुना था। एक पर्सन अगर वो वॉर में था, वो पर्सन वो लड़ रहा था अपनी कंट्री के लिए, जब वो पर्सन वॉर खत्म होने के बाद अपने घर पे लौटता है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज़ को डाउट करने लगते हैं कि अगर मैंने डस्टबिन ओपन करके देखा तो उसके अंदर बॉम्ब हुआ तो उनको हर चीज़ का फियर रहता है। एंड ऑल्सो जैसे अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी वो हॉर्स की, कि हॉर्स के गले में वो रोप डाल के उसको लेके जाते हैं। एक पर्सन ने इमेजिनरी रोप उसके लिए डाला था, एंड वो फिर भी ऐसे ही एक्ट करा था जैसे कि एक्चुअल रोप डाली गई है। तो यू आर रनिंग ऑन द ओल्ड पैटर्न। आप ओल्ड लूप, ओल्ड साइकिल में, ओल्ड सॉफ्टवेयर पर रन कर रहे हो। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, लाइक लिटरली आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। आपको नई चीजें करने की जरूरत है, आपको नई तरीके से सोचने की जरूरत है, आपको बाहर निकलने की जरूरत है अपने ट्रैप से। दिस इज अ मेंटल ट्रैप, इससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपका खत्म हो चुका है वो सब चीजें। आपको बस अपने नर्वस सिस्टम को, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है फॉर द न्यू रियलिटी, एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। अगर आपको अब तक क्लैरिटी भी नहीं मिल रही थी अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे क्या करना है, सो आई वाज सेइंग हियर दैट यू आर फ्री टू गो एंड you are divinely protected. Just move out of this energy. So life purpose, we have new ideas, new inspirations will guide you to your divine calling. What is meant for you will stay, and as long as you keep pushing forward, when you ask for what you need, things will align to make your vision clear, vision real. So yeah, just this is the thing, that's what I was telling you, कि आपके लिए न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू इंस्पिरेशंस आ रही है, बट आप ओपन ही नहीं हो उसको रिसीव करने के लिए। आपको अभी भी यही लग रहा है कि मैं उन्हीं पुरानी चीज़ों में अटकी हुई हूँ, एंड अभी भी कुछ भी नहीं होएगा, सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपके लिए नई चीज़ें वेट कर रही है कि कब ये पर्सन बाहर निकले अपने इसी नेगेटिव थॉट से, और कब ये चीज़ें एंटर करे, कब नए लोग आपको हेल्प करने के लिए आए, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आए। बट आप अगर उसको रिसीव करने के लिए खड़े ही नहीं होंगे, आप आगे ही नहीं बढ़ोगे उसको रिसीव करने के लिए, तो वो चीज़ें कैसे आएगी आपकी लाइफ में? आपका लाइफ पर्पस कैसे आपको पता लगेगा? आप अपने सोल पर्पस के पास में कैसे जाओगे? आप वो कैसे करोगे जो आपको फुलफिल करती है चीज़, अगर आप ओपन ही नहीं हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो पास्ट की चीज़ें वापस रिपीट नहीं होएगी। अगर आप करियर के अंदर बार-बार सेम तरीके की चीज़ें नोटिस करते थे कि कभी मैंने कोई चीज़ चालू करी एंड वो नहीं काम कर रही है और मुझे इसमें लॉस दिख रहा है, वो चीज़ अब रिपीट नहीं होगी, क्योंकि वो कर्मा था आपका, जिसको शनि देव ने क्लियर करवा दिया है। आपने अगर लेसन सीख लिया है, वो चीज़ वापस रिपीट नहीं होएगी। बट अगर अभी आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझे और हील करना है, मुझे और इस पे काम करना है, तो नहीं करना है, बाहर निकलो इससे। बाहर कैसे निकलोगे? खुद के माइंड को शिफ्ट करो, अपने पैटर्न्स को शिफ्ट करो, इस तरीके से सोचो कि मैं
अब फ्री हूँ, मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, मेरी एक नया चैप्टर चालू हो गया है एंड नाउ आई कैन डू ऑल दोज़ थिंग्स जो मेरी हायर सेल्फ सोचती है, जो फ्यूचर वर्ज़न जिसके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ़ जिएगी अभी। वैसे सोचने लगोगे तो आपकी लाइफ़ में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगेंगे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल योरसेल्फ, बार-बार नेगेटिव चीज़ें जब आपकी लाइफ में आ रही है, नेगेटिव थॉट्स, ओल्ड पैटर्न्स, नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ जब बार-बार आपके माइंड में आ रहे हैं, आपको हॉन्ट कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी दे रहे हैं, तो आपको अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा, नो, आई एम द बॉस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन लाइफ, आई एम द न्यू अर्थ लीडर, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं मेरे अंदर और मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें आएगी, भगवान मुझे सपोर्ट करे, मेरे स्पिरिट टीम की आर्मी मेरे साथ खड़ी है एंड कोई मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, मैं हमेशा वहाँ पर जीत जाती हूँ। मैं जिस भी चीज़ को सोचती हूँ, वो चीज़ मेरे लिए हो जाती है। हर चीज़ आपकी लाइफ में आज तक वर्कआउट करती हुई आई है। आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, आपको वो चीज़ कैसे ना कैसे करके मिली ही है अपनी लाइफ में। वो चीज़ें काम करी, आप कभी भी स्टक नहीं हुए हो। आप हमेशा उस चीज़ से बाहर निकल चुके हो। आप मूव ऑन कर जाते हो, आप बाहर निकल जाते हो। लाइफ आपको आगे ले जाती है, तो कैसे आपका करियर यहाँ पर स्टक हो जाएगा? करियर स्टक नहीं होएगा। करियर आपके सोल पर्पस के साथ में अलाइन नहीं होगा, अभी मुझे 333 दिखा, उससे अलाइन नहीं होएगा तो प्रॉब्लम होएगी। कोई ऐसी चीज़ करोगे जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, जो आपके फैमिली, ऐसे लोग जो आपके सोल पर्पस से अलाइन नहीं है, वो चीज़ जो लोग बोलेंगे आप उसको मानोगे, वहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। फुलफिलमेंट वही मिलेगा जो आपकी सोल से आ रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू योर हेल्थ। आई फील दैट आप अपने करियर को लेकर इतना परेशान हो ना कि आपका आपका माइंड हमेशा यही चलता रहता है, करियर में ये करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे इस पर्सन से बात करनी है। आपका दिमाग इसी में चलता रहता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा-सा नेचर में जाओ, आस-पास की दुनिया देखो, कनेक्शन बनाओ लोगों के साथ में, भगवान से कनेक्ट करो। आप देखो ये दुनिया कितनी बड़ी है, यहाँ पर अगर आप जीवित लोगों के साथ में या जीने वाली चीज़, लिविंग थिंग्स के साथ में, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से, लिविंग थिंग्स के साथ में, प्लांट्स के साथ, बर्ड्स, एनिमल्स, धरती के साथ में अगर आप जुड़े रहोगे, तो आप ग्राउंडेड फ़ील करोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेचर वाइब्स बहुत आ रही है। यहाँ पे ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की बहुत ज़रूरत है। मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग में रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो ग्राउंड करो थोड़ा अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। क्यों इतना हवा में रहना है? क्यों अपने दिमाग को इतना प्रेशराइज़ करना है? क्यों हज़ार तरीके के थॉट्स अपने दिमाग में लेकर आने हैं? डोंट डू दैट, स्टे ऑन वन थिंग। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन करने से आपका माइंड स्टेबल होता है। ब्रीदिंग करोगे, आपका फ़ोकस आपकी ब्रेथ पे आएगा, आपकी बॉडी पे आएगा, इस दुनिया से दूर हटकर। एंग्ज़ायटी होती है, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट। मेडिटेशन आप बहुत तरीके से मेडिटेशन कर सकते हो। यू कैन गो ऑन यूट्यूब, आप वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी तरीके की साउंड सुन सकते हो। एयर, बर्ड्स की चर्पिंग, वाटर फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है उसकी, फायर की आवाज़, सो साउंड मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो ग्राउंड पे बैठ जाओ, जैसे कोई ग्रास, कोई लैंड, कोई गार्डन है, वहाँ पर आप लेट जाओ 5-5-5, वहाँ पे लेट जाओ, वहाँ पे आराम से रेस्ट करो, ब्रीदिंग करो, जस्ट जस्ट बी प्रेज़ेंट विद योर बॉडी, विद द नेचर, कनेक्ट एंड अलाइन विद द नेचर। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस करने की। गो फॉर वॉक्स, वॉक करने जाओ, स्लो वॉक,
अपने नर्वस सिस्टम को काम करने की ज़रूरत है। ब्रीदिंग से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं होती है। ब्रीदिंग, अपनी सांस पे ही फोकस करो। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अच्छी सांस लो। घुटन घुटन फील होती होगी आपको बहुत ज़्यादा। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन से मुझे दिख रहा है कि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें इसने एक आर्मर पहन रखा है और ये बहुत स्लो कार्ड होता है। तो अगर आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ में चल रहे हो और आपको घुटन महसूस हो रही है अपनी लाइफ के अंदर कि कब ये चीज़ होएगी, कब ये ठीक होएगा, कब क्या होएगा? वो घुटन से बाहर निकलने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स के पास बैठो, गार्डनिंग कर सकते हो आप। जब आपकी जब आपको आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही है? जब आपकी लाइफ में आप स्टेबल महसूस करने लग जाओ कि बस बैठे हो और बस अच्छा लग रहा है। जैसे बर्ड्स उड़ते हुए जा रही है, सनलाइट आपके ऊपर गिर रही है, हवा चल रही है हल्की और आप बस प्रेज़ेंट हो, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप रिलैक्स हो, चिल कर रहे हो। चिल करना नहीं आता आपको। वो करने लग जाओगे ना जब, तब आप समझ जाओ कि आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल सब अलाइनमेंट में है। You have to be in alignment with your God, with angels, with your higher self. आपके हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड है आपका करियर। जब आप अपने जब आप अपने करियर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उसके पहले आपको स्टेबल करना पड़ेगा। जब आप अपने नर्वस सिस्टम को स्टेबल करोगे, आप काम रहोगे, अभी जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, आप ये चीज़ रेगुलरली करने लगोगे, 1-2 हफ्ता आपने रेगुलरली करा, आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा। जब आप ज़्यादा रिलैक्स रहते हो, काम रहते हो, तब अबंडेंस फ्लो करती है आपकी लाइफ में। तब वो चीज़ें ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ के अंदर आती है। लेट्स मूव ऑन टू योर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के लिए ओके, क्या मैसेजेस है? वाओ! ओह माय गॉड! वन मोर प्लीज। ओके, दैट्स अ लॉट। वन मोर। Wow. Come on, you are moving out of the stuckness. You are going through a rebirth. So, yeah. जैसे ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इसके पास में, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहा है, ये पर्सन एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। दिस पर्सन इज डाइंग ओवर हियर। ये दोनों कार्ड 10 के हैं। यहाँ पर इसकी न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग। You are creating a new chapter of your life. Okay, मुझे ये समझ आ रहा है that पहले की जो जिंदगी थी वो पूरी कार्मिक थी आपकी। जिस समय भी आप, जिस भी एज में आप ये चीज देख रहे हो, जिस भी एज में, जिस भी समय पर आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी महीने में आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो एक चैप्टर था लाइफ का वो खत्म हो चुका है। वो उस एंड पर है कि बस आपको ट्रांजिशन करना है, जंप करना है दूसरे चैप्टर के अंदर। पर वो चैप्टर बनाने के लिए आपको यूनिवर्स के साथ में बैठना पड़ेगा, आपको को क्रिएट करना पड़ेगा अपनी नई लाइफ को। मैनिफेस्टेशन हम इसलिए करते ताकि हम को क्रिएट कर सके यूनिवर्स के साथ में। अगर आप उनके साथ बैठोगे नहीं, आप उनको बताओगे नहीं कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, तो वो आपकी लाइफ बनाएंगे ही नहीं। आप इसी लूप में फंसे रहोगे। आप पहले ही चैप्टर में, पहले का जो चैप्टर है उसी में अटके रहोगे, उसी साइकिल में बार बार घूमते रहोगे, क्योंकि आपको ये बोला जा रहा है कि अगला चैप्टर आपको खुद बनाना है कि आपको क्या चाहिए उसके अंदर, किस तरीके का चाहिए चीजें। You have to create a life of fulfillment, of enjoyment, and उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। You have to be in this energy of a queen, and you have to be in this energy of a queen or a king, that I am the creator of my own life. मैं अपनी जिंदगी खुद लिखती हूँ। जब उस पावर में आओगे तो आपके एंजल्स बैठे हैं वो चीज को क्रिएट करने के लिए, एंड यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी राइट नाउ।
अभी से वो चीजें आपको फील करनी पड़ेगी। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस राइट नाउ, सो आपके लिए काफी सारे इंफॉर्मेशन आ रही है। लाइक योर एंजल्स आर लिटरली टेलिंग मी कि इनको बोलो ये चीज, इनको बोलो ये चीज, क्योंकि आप अभी बहुत सारी चीजों के अंदर जो यूजलेस चीज है ना उस पर फंसे हुए हो। उससे बाहर निकलो यार, अच्छी लाइफ जियो, अच्छी लाइफ बनाओ खुद के लिए। यू हैव दैट पावर, इतनी सारी चीजें सीखी है, इतनी टेक्निक सीखी है। I just have to tell you, if you are still watching this video, you are not an ordinary soul. You are not an ordinary soul. आप बहुत पावरफुल हो, बहुत 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 पावरफुल हो. This is a very long video, and if you're still here, this is not a coincidence because I don't believe in coincidences. Any final guidelines, any timeline कि ये चीज़ कब तक आ सकती है, कौन सी चीज़ कब तक हो सकती है, आपकी ब्लेसिंग्स कब तक आ सकती है, या कुछ भी गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। Angel Spirits and my higher self, please tell me any kind of guidance, any timeline that you want to share with the collective. Please let me know. क्या क्लूज आप देना चाहते हैं for the viewers? Sacred union, partnership, collaboration, reconciliation. This is not a full moon. Okay. Full moon का कार्ड है. Manifest on the full moon. Tomorrow is full moon. I think जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे फुल मून है, और उस दिन होली भी है. आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस. या तो मैं आज पोस्ट करूंगी या फिर फुल मून के दिन पोस्ट करूंगी. जिस दिन भी फुल मून है उस दिन आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी चीजों को लिखना है. दिस इज अ वेरी पावरफुल डे व्हेन यू कैन क्रिएट थिंग्स, व्हेन यू कैन क्रिएट योर न्यू चैप्टर. Sacred union. You have to collaborate with the union, with the universe, and co-create a new life, because that's how you can bring in your soul tribe, your soul family, a divine partner for you. हेल्प, न्यू हेल्प. नए नए लोगों से आप तभी मिल सकते हो जब आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में रहोगे जहां पर आपको वो चीजें ऑलरेडी मिल चुकी है. लव इज कमिंग, बी रेडी. न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ. न्यू लाइफ पार्टनर इज कमिंग इन योर लाइफ. लव कैन ऑल्सो बी योर सोलमेट्स. जैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं. इट कैन कम इन फॉर्म ऑफ पेट्स. सो इन सब चीजों, इन सब लोग से भी आपको प्यार मिल सकता है. सो ओवरऑल लव इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो या जो भी मैंने आपको एडवाइसेस दी है, जो भी आपको गाइडेंस दी है, अगर आप ये शिद्दत से फॉलो करोगे, सो यू विल डेफिनेटली सी अ ह्यूज शिफ्ट इन योर लाइफ, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क. एंड आई एम नॉट किडिंग यू, इट एक्चुअली विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड मेक यू अ पर्सन that you have never imagined कि आप बन सकते हो. Just keep doing these things, and yeah, that's it for today. And I hope you enjoyed this video और आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको गाइडेंस मिली हो. I pray कि आपका 111 देखा मेरे को, आपका ये जो फेस्टिवल है, ये मंथ जो है, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.